ছট পুজো উপলক্ষে কসমোপলিটন রোডে 47 নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর বিমল সিং এবং তার স্ত্রী সুমন সিং দুজনের উদ্যোগে অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হলো। এই পুজোর মাহাত্ম্য একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করা। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছট ব্রতীতে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য 47 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিমল সিং এলাকাবাসীদের পেতলের কুলো উপহার করেন। খুশি এলাকাবাসীরাও। পুজোর যাবতীয় সামগ্রী ওই কুলোতে দেওয়া হয়েছে যাতে সাধারণের কোনো অসুবিধায় না পড়তে হয়। এই অনুষ্ঠানে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম উপস্থিত ছিলেন। 74 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবলীনা বিশ্বাসও। ব্যুরো রিপোর্ট 24 আওয়ার্স টিভি। এই রাজ্যে গণতন্ত্র আছে, অনেক কিছু মানুষ বলে, অন্য রাজ্যে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেশ জুড়ে পুলিশের ইউনিফর্ম একই হোক। আজকে আজম খানকে 3 বছরের সাজা দিয়েছে কালকে। তাহলে যারা
এই রাজ্যে বা অন্য অন্য জায়গায় দেশে উত্তেজনামূলক ভাষণ দিল, হেড স্পিচ দিল, তাদের কি হবে? আমি সমর্থন করি না, বাজে ভাষার সমর্থন করি না, আমরা ব্যক্তি আক্রমণের সমর্থন করি না। যে স্পিচে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় সেটাকে কন্ডেম করি, আমি সমর্থন করি না। কিন্তু আইন সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। এবং আজম খানকে বলা 3 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হলো, কিন্তু বিজেপি নেতারা যখন গলি মানুষ হলো তখন তাদের কিছু হচ্ছে না, তাদেরও উচিত কোর্টকে ইনিমিয়াসলি তাদের বিচার করা। আইন সবার জন্য, ভারতবাসীর জন্য সমান হওয়া উচিত। कोलकाता में जिस तरह से डेंगू की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसको रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? इसको रोकथाम के लिए हम प्रचार कर रहे हैं। हमारा केएमसी का फुल जो फोर्स है वो लगा है, स्प्रे दे रहा, घर घर जा रहा, प्रचार कर रहा, डोर टू डोर कर रहा। मगर जब तक इंसान सचेतन नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग का ऊपर छत में कोई टब में पानी है कि नहीं हमारे लिए संभव नहीं है देखना। कोई बिल्डिंग का पीछे, आपके घर के पीछे अगर वहाँ पर कोई बाल्टी टूटा पड़ा हुआ है, उसमें फ्रेश पानी है कि नहीं, हमें संभव नहीं है हमारे लिए। आपको खुद जाके 7 दिन में एक बार छत में उठ के देखना पड़ेगा चारों तरफ, जो कहीं पर कुछ है कि नहीं। ये सचेतनता जब सबका आ जाएगा, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में डेंगू नहीं रहेगा। দেশ জুড়ে পুলিশের ইউনিফর্ম একই হওয়া উচিত। উনি অনেক কিছু চিন্তা করেন, ওনাকে চিন্তা করতে দিন। আমাদের রাজ্য আমাদের মতন করে আমরা চালাবো। তার কারণ মানুষ আমাদের ভোট দিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। এখানেও অ্যাসেম্বলির কাজ আছে, সরকারের কাজ আছে। সব কাজটা উনি ঘাড়ে নিয়ে নিলে আমরা কি করব? হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী বকেয়া প্রায় 90% মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়েছে তো, আমরা তো মিটিয়ে দিচ্ছি। আমরা যেটা কমিট করি সেটা করি, এবং এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। সরকার এটা করছে এবং মানুষ স্বাস্থ্যসাথীর উপকারটা খুব বেশি ভালোভাবে পাচ্ছে। না না, ওর সাথে আমার কথা হয়েছে। নিখোঁজ পোস্টার পড়েছে। শত্রুঘ্ন সিনহা একজন বয়স্ক মানুষ, কিছুদিনের জন্য যাননি, কিন্তু খুব শিগগিরই যাবেন। এটা একটা পলিটিক্যাল স্টান্স, যেরকম নীতিশ পরামানিকও যাচ্ছে না, সেই জন্যে আবার ওখানে হচ্ছে। সেরকম সাংসদ সবসময় তো যেতে পারেন না, কিন্তু শত্রুঘ্ন সিনহা কিন্তু যথেষ্ট যান। আচ্ছা, এই নীতিশ প্রামাণিকের ব্যাপারে উদয়নগুলো যে মন্তব্য করেছেন, তার জন্য বিজেপির পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ উদয়নগুলোর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের থানা দেখবে, আইনের পথে চলবে। পঞ্চায়েতের আগে বামেদের নয়া কর্মসূচি, গ্রাম থেকে শহর ঘেরো, মানে কি বলবো? তো বহুদিন ঘিরেছিল। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম করে তো শহর থেকে গিয়ে গ্রামে দখল করছিল। এখন ওসব চলবে না। এইসব মানুষ জেনে নিয়েছে সিপিএম এর আর ভ্যালু নেই। 2000 কোটি টাকা এই যে 3 বার বিপর্যয়ের পর মেট্রোর খরচ প্রায় 2000 টাকা বেড়ে গেল। 2000 কোটি টাকা। তো যদি ইঞ্জিনিয়ারিং ফল্ট হয় তো সে সংস্থার তো খরচা বাড়বেই। যদি ইঞ্জিনিয়াররা সচেতন না হয়ে আগের থেকে না করে যদি ফল্ট হয়, তাহলে তো তার খরচা বাড়বেই। তো সেটা আমি কি করব? এখনও ক্ষতিপূরণের হিসেব হয়নি, মানে এখনও লোকে পায়নি টাকা। যাদের ক্ষতি হয়ে বাড়ি ঘরদোর চলে গেছে তাদের বাড়ি পুনর্নির্মাণ করতে হবে। তার কারণ আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং ফল্ট, অন্য সে মানুষগুলো যাদের ক্ষতি হলো তারা তো ঘাড়ে নেবে না। আমরা নোটেতে গান্ধীজির ছবি থেকে এসেছি, নোটেতে সেখানে অরবিন্দ কেজরিওয়াল লক্ষ্মী গণেশের ছবি চাইছে, বিজেপি সেখানে নরেন্দ্র মোদীর ছবি চাইছে নোটেতে, যেখানে গান্ধীজির ছবি। এটা কি দেশ চলছে না পাগলামি হচ্ছে? কি হচ্ছে এটা? দেশ চলছে না পাগলামি হচ্ছে? কে কত ধর্মীয় সুশ্রী দিয়ে ভোট চাইবে, এর কম্পিটিশন হচ্ছে। देश देशेर मध्य चलবে, राजनीति राजनीतिर मतन चलবে। छठ पूजा का प्रोग्राम करके हम भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं। हमारा वार्ड कॉस्मोपॉलिटन वार्ड है, हर जाति धर्म के लोग हैं यहाँ। हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, छठ पूजा भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। भाईचारा के बंधन को मजबूत करने के लिए हम लोग ये छठ पूजा का प्रोग्राम करते हैं। और पीतल का यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ खुला दे रहे हैं इस बार।
पीतल का सूप देने का मतलब है कि जो लोग छठ व्रती हैं, कमर तोड़ महंगाई में छठ पूजा करना असंभव हो गया है गरीब लोगों के लिए। तो छठ पूजा ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ये उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक कोशिश की है। तृणमूल के लोग हम लोग हैं, हम लोग हमेशा लोगों के पास है, एक कोशिश है। और सबसे आप लोगों से भी आशीर्वाद चाहेंगे कि हर साल हम पीतल का कूला लोगों तक दे सकें। और ये इसमें कोई गिनती नहीं है, जो लोग आएंगे सबको भर के, एक कूला में इतना सामान होता है कि एक आदमी छठ पूजा पूरा कर ले। छठ मैया सबको अच्छा रखे, हमारी ममता दीदी को प्रधानमंत्री बनाए, यही सब कोई प्रधानमंत्री से ये करेंगे कि सब कोई सूरज भगवान से ही मनाए कि हम लोगों की ममता दीदी देश का प्रधानमंत्री हो, कि देश में शांति आए। আমি তো এখানে আসি আজ না, বিমলদা এটা বছরের পর বছর করেন এবং আমরা এখানে আসি, এই পর্ব মানাই। আমার 48 নম্বর ওয়ার্ডে দু জায়গায় আজকে সুখ দেওয়া হয়েছে, আমার 46 নম্বর ওয়ার্ডে গান্ধী করছে, আর বিমলদার এটা সবচেয়ে বড় হয়। অন্য জায়গায় বেতের কুলো দেওয়া হচ্ছে, এখানে পিতলের কুলো। তা আমি ইয়ার্কি মেরে বলছিলাম যে আমার একটা কুলো দাও, আমিও তো পুজো পাজা করি। তো এটা একটা খুব বড় করে করা হয় এবং আমি বলবো যে দেশে কোথায় কি হচ্ছে আমি জানি না, আমি অত খবর রাখি না, রাখতে চাইও না। কিন্তু আমাদের রাজ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দুদিনের ছুটি দেন, তিনি নিজে বেরিয়ে এসে ছট পুজো করেন এবং ঘাটে ঘাটে ঘোরেন। কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এরকমভাবে ছট পুজো করেন কিনা আমি জানি। দেখুন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তো বেরোবেই, কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিজে পুজোটা করেন এবং বেরিয়ে এসে পুজো যেরকম দেন সেদিন উনি ঘাটে ঘাটে ঘোরেন। আমরা তো ঘুরবই, আমাদের তো কোনো ব্যাপার না, আমরা তো ঘুরি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বেরিয়ে, অন্য রাজ্যে হয় কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমাদের রাজ্যে হয়। আমার এখানে প্রাসী বউ ব্যারাকস আছে, এই কিছুদিন বাদে ক্রিসমাস আসবে, আমরা ক্রিসমাসের সময় আমরা সব ওখানেই থাকবো, ওখানেই আমরা ডিনার করি, ওখানেই সব কিছু। আবার ধরুন ঈদ যখন আসে আমরা বেরিয়ে খুলে মুখ খুলে বলি ঈদ মুবারক, গলায় মিলিয়ে। আমার এখানে চাঁদনি চক আছে, সেখানে বিমলদা আমরা সকলে মিলে গিয়ে সেখানে সেমাই খাই, আমরা আনন্দ করি। আমি জানি না বিহারের লোক কত খায়, আমরা এখন লিট্টি চোখা খুব খাই, সুমন খুব দারুণ লিট্টি চোখা বানায়, তো আমরা লিট্টি চোখা খাচ্ছি। তো ডেফিনেটলি এটা একটা জানবেন যেটা একটা শক্তি, এই শক্তি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। দেখুন, আমি তো পুজো তো প্রত্যেকেই করে, আপনিও আপনার বাড়িতে পুজো করবেন, উনিও ওনার বাড়িতে পুজো করেন, এর বাড়িতে দোয়া মাঙে, সকলেই পুজো করে। আমরা ভারতবর্ষ ভারতীয়রা ধার্মিক হই, সে যে কমিউনিটি হোক, শিখ হোক, মুসলিম হোক, ক্রিশ্চিয়ানস হোক, বেঙ্গলি হোক বা নন বিহারি হোক, বা সাউথ ইন্ডিয়া হোক, সাউথ ইন্ডিয়া শিবজিকে মানে। তো ডেফিনেটলি ইন্ডিয়া ধার্মিক হয় ভারতবর্ষ, কিন্তু সেই ধর্মকে নিয়ে যারা খেলা করে, সেই ধর্মকে নিয়ে যারা রাজনীতি করে, সেটা কিন্তু নোংরা, সেটা হওয়া উচিত না। আমার ধর্ম আমি আমার ঘরে পালন করব, কিন্তু অন্যের ধর্মকে সম্মান দেবো, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বলেন, সেইটা হচ্ছে আসল ব্যাপার। সেই জায়গাটা থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে নিজের ধর্ম পালন করো, কিন্তু অন্য ধর্মকে সম্মান দাও। আমারটা ভালো তোমারটা খারাপ, এই জিনিস হওয়া উচিত না। এই জিনিস দেশে চলছে, যেটা খারাপ হচ্ছে। দেশের যে আমাদের একতা, সেই একতাটাকে ভাঙা হচ্ছে। विमल सिंह जी मेरे दोस्त, मेरे बहुत करीब हैं, हमारे भाभी और अभी हमारे कलीग हैं, हम लोग एक साथ विधानसभा में हैं, नैना बंदोपाध्याय। हमारे दूसरी भाभी अभी हमारे काउंसिलर हैं सुमन सिंह जी, राकेश जी हैं यहाँ पर, सुभाषिष हैं, सिंह साहब हैं, और सारे हमारे दोस्त जो हैं और आप सब हैं। मैं पहले तो छठ पूजा के इस अवसर पर आपको आगे से बधाई देते हैं। ये हम विमल सिंह जी से हम लोग सीख रहे हैं लोक सेवा कैसे किया जाता है। हर साल छठ पूजा से आगे छठ के सामग्री हमारे कई माता के हाथ में उठाया जाता है, और हम बंगाल में ये हमारे नेत्री ममता बनर्जी का निर्देश है
चाहे हम बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे मद्रास के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, हम जब बंगाल में रहते हैं, ये हम सब बंगाल के हैं, हम सब बंगाली हैं। और इसी के तहत ये उत्सव हमारा सबके है। देखिए दूसरे स्टेट में, बिहार में और यूपी में छठ पूजा का छुट्टी एक दिन का होता है, मगर ये सिर्फ बंगाल है जहां पर ममता बनर्जी छठ पूजा के लिए 2 दिन छुट्टी देती है। एक दिन तो छठ के आयोजन के लिए, जब माँ रात को छठ पूजा के लिए जाती है, दूसरे दिन, और फिर छठ पूजा के बाद थोड़ा तबीयत खराब होता है, रात जागना पड़ता है, इसलिए दूसरा दिन भी छुट्टी होता है। तो ये बंगाल में है, बिहार में 1 दिन का छुट्टी और बंगाल में 2 दिन का छुट्टी। और मैं धन्यवाद कहता हूं ममता दी को, जो हमारे वातावरण ऐसा है जहां पर हमें सबको लगता है जो ये हमारे जगह है, ये हमारे जगह। आज इस छठ के अवसर पर आप सबको बधाई देते हैं। इस बार फिर देखते हैं जो कूला जो है वो पीतल का है। इसका मतलब है, नैना भाभी भी कह रही थी कि एक ठो कूला अगर हमको मिल जाए तो हम भी पीतल का कूला जो है घर में रखेंगे और अच्छा रूप से बना। वो कूला भी कुछ अलग तरह की है, पीतल का है, और सामग्री भी अच्छा है, मंच भी अच्छा है, और अच्छा नेता मेयर भी आएंगे 1:30 बजे, तो सभी अच्छा ही अच्छा है। मेरा गले का हाल ठीक नहीं है, मैं अभी न्यू मार्केट से आते हैं, और एक 41 वाट 42 वाट ये बड़ा बाजार में है 2 प्रोग्राम। तो मैं सबको मेरा शुभकामनाएं देते हैं, और गले के कारण पर डॉक्टर की परामर्श पर थोड़ा रेस्ट टू वॉइस, गले को थोड़ा शांत रखने का। तो छठ व्रतियों को देखने से, आपका गीत सुन के, और सुमन सिंह मुझको कहा कि जब ठेकुआ बनाते हैं तब ये गाने के साथ जितना ठेकुआ बनेंगे वो ठेकुआ का स्वाद भी उतना ही अच्छा होगा। तो ये आप लोगों का विषय पर विमल सिंह हम लोगों को पूरा सिखाया दिया, जो आप लोग क्या पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं, कौन गीत पर ठेकुआ अच्छा होते हैं, ये सब कुछ। और हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सोचते हैं कि जो बिहार से जो लोग यहाँ आए हैं, रहते हैं, घर बनाए, ये बिहार को छोड़ के ये कोलकाता शहर को उन्होंने अपना दूसरा घर बना दिया। तो यहाँ रहने से छठ पूजा में शामिल होंगे। छठ व्रतियों ने रास्ते पे डंडी काटते काटते कैसे जाते हैं, मैंने ये देखा, आंखों में आंसू आ जाते हैं देखते देखते, कैसे इतना सारे लंबा। मैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी रोड पे रहता हूँ, मेरा रास्ता का ऊपर से ही कितना सारे औरतें वो डंडी काटते, वो क्या बोलते हैं, डंडी काटते, काटते काटते थोड़ा उतर के फिर 2-4 पर जाके फिर सो जाते हैं। तो सूर्य देवता को आप लोग कितना मानते हैं। और हमारे काशीपुर बेलगछिया वो प्रांत में गंगा के किनारा में तो लाखों से छठ व्रतियों वहाँ शामिल होते हैं। ममता बनर्जी छठ पूजा के लिए 2 दिन छुट्टी दिया, 2 दिन। ये बिहार में है, दूसरा कोई राज्य में नहीं। अभी के काउंसलर बिमल दा बहुत जोर शोर से ये प्रोग्राम करते हैं और करते आए हुए हैं। ये नहीं कि कल किया या 2 बार किया या 3 बार, ये बरसों से ये करते हैं और बरसों से हम लोग आते हैं यहाँ पे। आज आप लोगों की लाऊ बात है, कल खरना है, फिर छठ पूजन। माना जाता है कि दीपावली की 6ठा दिन में छठ पूजन होते हैं, लेकिन छठ पूजा के लिए आप लोगों को ये सब जो नियम है
ये नियम आप लोग पालन करते हैं। हमारी सुमन है यहाँ पे, और हम लोग ये बंगाल में कह सकते हैं, विमलदा को आप लोग पूछ लीजिएगा, हम लोग ये बिहार की जो रीति रिवाज है ये हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं और अपना कर लेते हैं। हमारे 48 वार्ड में ये सूप नहीं दिया जाता था, तो एक दिन हमने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछी कि दीदी हमारी इच्छा है कि 48 वार्ड में भी हम लोग ये प्रोग्राम चालू करें। तो उन्होंने, मैं बांग्ला में कह रही हूँ, आप लोग बंगाल की भी हो, उन्होंने कहा निश्चय करबी, क्या करबी ना। वो खुद छठ पूजा के दिन निकल के आती है और ये पूजा वो भी करती है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे कि ये बिहार की पूजा है, नहीं, ये बंगाल की भी पूजा है। हम लोग जानते नहीं कि आप लोग लिट्टी चोखा कितना खाते हैं, लेकिन बंगाली लोग जो लिट्टी चोखा खाते हैं ना, वो आप लोगों को पता नहीं। मैं मांग मांग के खाती हूँ, सुमन मेरे को घर देती है और मैं खाती हूँ, क्या सुमन बताऊं। तो ये अपना पर्व भी है, ये बंगाल का भी है, और देश में ऐसा आप नहीं देखेंगे कि कोई मुख्यमंत्री छठ पूजा के दिन निकल के घाट में आती है, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छठ पूजा के दिन वो खुद निकल के घाटों पे जाती है, पूजन करती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग बिहार चाहे यूपी चाहे बंगाल चाहे मुंबई की महाराष्ट्र चाहे, हम लोग अलग नहीं सोचते हैं। हम लोग बंगाल में सभी पर्व को अपने दो बाहू दो हाथ फैला के हम लोग अपना लेते हैं कि ये हमारी खुद की भी पर्व है। और छठ पूजा की पावन अवसर पर विमलदा को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, आभार करूंगी। जो छठ व्रतियों है उन लोगों को अपने तरफ से मैं नमन करूंगी, प्रणाम करूंगी। आपकी जो मनोकामना है ये छठ मैया पूर्ण करें। और मैं ये कहूंगी कि हमारी बंगाल में चाहे दूसरा स्टेट में चाहे हो या नहीं हो, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये छठ पूजा के लिए 2 दिन की छुट्टियां देती है। ये देश में कई राज्य में नहीं होती है, ये बंगाल में होते हैं। विधायक नैना बंदोपाध्याय जी, पहले तो इस प्रोग्राम में आपको आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, और हमारे अंचल के तमाम नागरिक माताएं बहनें जोरदार हाथ ताली दीजिए। नैना बंदोपाध्याय की ये सबसे बड़ा खासियत है कि हम लोग के हर प्रोग्राम में आती है, खाली खबर देने का जरूरी है बस। इंकड़ा बिड़ी भाई लोग सुना लोग, तुम लोग तो यार कहाँ पिछुआ रहे लोग। इंकड़ा बिड़ी ना चिट्ठी उट्ठी कुछ भेजे के जरूरत नहीं के, खाली 47 नंबर वार्ड के नाम चल गए कि मैडम यही प्रोग्राम आछे महबूब भाई, बस बोलने का देरी, उनको आने का देरी नहीं है। तो इसलिए हम लोग का उत्साह और दुगना बढ़ जाता है। काहे कि टीएमसी में एगो बात बोल दी भाई लोग, भले खराब लगी सबके सुने में, नेता लोग को बुलाए में बड़ा दिक्कत बाड़े, बाप रे बाप। खाली ये सुदीप दास, नैना बंदोपाध्याय और हम लोग के वो फिराद हाकिम मेहरबान बबी हाकिम, उनकरा के कहता लोग आ जाए लोग ना, तो सब नेता के बुलाए में चप्पल के सोल खिया जाए, लेकिन नेता नहीं। इतना अच्छा प्रोग्राम हमनी के 47 के प्रोग्राम के खासियत अच्छा से साहब महबूब भाई सुनो यार बात को, यहाँ हवा हवाई नहीं बात करते हैं। हर दिल जो प्यार करेगा वो तृणमूल दल करेगा। तो यहाँ हम लोग हमनी के जो भी प्रोग्राम होला उनमें देवे वाला प्रोग्राम रहेला, कोई से न लेवे के बना कुछ। तो वे कहानी बाना बोले महबूब भाई कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब अपना पैसा के प्रोग्राम करे के बाद और यहाँ अंचल के आदमी के सपोर्ट बा, अब माता बहन लोग अपने से गाना गाओ तरी लोग,
आप बैठा रहे लोग की नैना मोदी के गाना सुने जा लो और भूसा है अपना का सुना बच्चू। ये बहुत बड़ी बात है और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इस साल हमने कोशिश किया है। कहावत है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हर साल हम सपना में देखते थे कि हम अपने लोगों को पीतल का सूप देंगे। पीतल का सूप का महत्व आप लोग समझिए, उसका महत्व बहुत शुद्ध होता है।